लड़की भी 50,000 कमाती, लड़का भी 50,000 कमाता। Why she'll take a sheet of yours? अगर हम अपने रिलेशनशिप्स में खुश नहीं हैं, what is homeopathy actually? Hello everybody, I'm Fawzia. You know me as a weekend traveler. लेकिन आज मैं अपने चैनल पे कुछ नया लेके आई हूँ, which is a podcast. I know आजकल लोग बहुत सारे podcast बनाते हैं, but even I love talking, so I thought why not? Let's just try. And today I have Dr. Shanik Shah as my first guest. He is a practicing homeopath from last 25 years. And as you know, society में बहुत ज़्यादा discussions and debates होते रहते हैं with respect to homeopathy and other alternative branches of medicine. So we have him who will enlighten us about the field and the branch in general. And we have a topic which we are going to discuss in details. So yeah, thank you for joining us, Uncle. Thank you, Fazia, for your kind introduction and wish you all the best for your podcast. Thank you. So what you want to know now? Firstly, I would like to know what is homeopathy actually? Well, homeopathic is basically falls under the Ayush department, Ayush branch, which has been considered as an alternative branch of medicine. There is a one branch which is modern branch, which is called allopathic, and homeopathic, Ayurvedic, Unani, naturopathy, all this falls under Ayush, which is also considered as an alternative branch of medicine. Okay. So what exactly is the difference between homeopathy, I mean between the Ayush branch and ये जो normal medicine होता है, so उन दोनों में क्या क्या difference है? Even there is a stark difference between Ayush is basically evidence based, while modern medicine is scientifically proven. So they do not believe anything which is not having an scientific data. Okay. While in Ayush, there are certain scientific data, but still it has जिसे कहते हैं ना कि सालों से सदियों से चली आ रही कुछ परंपरा है. आयुर्वेदा इज thousands of years old. It has a proven track record, but still the research which is supposed to be go behind it is not there. Same way in homeopathic also. So it is different in many ways. First and foremost thing is that in homeopathic we consider a person who is coming to us with some complaint. तो हम ऐसा सोचते हैं, वो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथिक कि भाई आदमी खुद बीमार है, नहीं कि सिर्फ वो कोई सिस्टम या तो ऑर्गन. So our approach as an homeopath to the particular patient is a whole. We are considering the person as a whole, not a part of the system. कि जिसकी कंप्लेन है, जैसे कि एसिडिटी की कंप्लेन लेके आया तो सिर्फ उसके बारे में ही नहीं जानना है. एसिडिटी हुई है तो किस वजह से हुई है. देयर इज सम फिजिकल एलिमेंट जैसे कि खाने में या तो नींद कम हुई है एक्सेट्रा. अदर देन दैट देयर आर साइकोसोमेटिक रीजंस आल्सो, and which is rather more prevalent in present era. Yeah. So that is equally important. And the homeopathic, which has been established some 275 years before, and the founder Dr. Hahnemann has at that moment of time he has established that there is a psychology behind the illnesses. Yeah. And it is an universal fact and the truth that nothing happens without reason. तो आदमी या तो कोई भी इंसान बीमार होता है तो उसकी वजह भी कई सारी होती है, उसमें से कुछ वजह तो पकड़नी पड़ती है. जैसे वी कॉल इट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कि भाई ये कुछ हुआ और उसके बाद में ये कंप्लेंट्स चालू हुई. तो हमारा जो अप्रोच रहता है केस टेकिंग के दौरान, उसमें क्लिनिकल कंप्लेंट्स जो है उसके बारे में तो डिटेल में इंक्वायरी होती ही है. उसके अलावा इंडिविजुअल की जो लाइफ स्टोरीज है उसमें भी हम डिटेल में जाते हैं, बिकॉज दिस आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सी एवरीबडी इंटरेक्ट्स इन सोसाइटी. हम वी आर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो वी इंटरेक्ट विद एनीथिंग एंड एवरीथिंग सराउंडिंग अस, विच जनरली हम जिसे कहते हैं कि एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं, इंसान है, तो हमारा रिएक्शन रहता है हर चीज के लिए. एंड दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इन इंडिविजुअल्स लाइफ कि भाई आदमी जब माँ के गर्भ में रहता है, अभी तो इट हैज बीन एस्टैब्लिश कि भाई माँ के गर्भ में जब माँ की मानसिक स्थिति क्या थी उसकी भी इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर होती है, फिटस के ऊपर होती है. वहां से चालू करके जब वो आपके पास आता है वहां तक की उसकी जो लाइफ जर्नी है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं. उसमें से कई बार कुछ इंसिडेंसेस निकल के आते हैं जो इंसान को डिफाइन करते हैं. जिसे डिफाइन करते हैं ना,
हम कहते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में कि भाई ये ऐसा इंसान है या तो ये ऐसी शख्सियत है, वो एक टेम्परामेंट है, नेचर है इंसान का। तो उसको समझना थ्रू द लाइफ जर्नी, 4 5 6 इवेंट्स हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ तो बनता ही रहता है। तो वो इवेंट्स के अंदर उसका इंसान का खुद का रिएक्शन क्या है, हाउ ही और शी हैज मैनेज द सिचुएशन, व्हाट वर द फीलिंग्स, how they have reacted, all those things gives the insight of an individual. Right. So you are treating or considering an individual as a whole Whole. person. Like कोई बीमारी नहीं है, बीमारी तो ठीक है, बट फिर भी एक पर्सनैलिटी को उसको समझना है. Exactly. बीमारी is one of the outcome of the individual. Yeah. तो भाई एक्सप्रेशंस आते हैं, कई बार एक्सप्रेशंस माइंड के ऊपर साइकिक लेवल पे होते हैं और फिजिकल लेवल पे. You used the word psychosomatic. Somatic. That So is what is that actually? The impact of your feelings and the thoughts, Yeah. which has expressed at the level of body. Psycho is thoughts and feelings, Thoughts, yeah. and soma is body. Okay. तो एक स्ट्रेस एक लेवल तक यू मैनेज, जिसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, कि इंसान की जिंदगी में कई बार ऐसी घटनाएं होती है, जैसे कोई फैमिली के अंदर नियर एंड डियर वन पास्ट अवे से सपोज, तो एक डिफेंस, नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म जो कुदरत ने बनाई है कि भाई आप उभर आते हो उस दर्द से, उभरना ही पड़ता भी है, बट देन दैट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल सेंसिटिविटी कि भाई एक मान लीजिए कि फैमिली में 5 आदमी हैं, फैमिली मेंबर्स है, और एक नियर एंड डियर वन एल्डर का डेथ हुआ है, तो पांचों का रिएक्शन टू द सिमिलर कंडीशन विल बी डिफरेंट, डिपेंडिंग ऑन द सेंसिटिविटी, डिपेंडिंग ऑन दैट परसीविंग ऑफ द इंडिविजुअल, लॉस ऑफ दैट इंडिविजुअल. किसी के लिए कोई अलग कीमत रखता है कोई इंसान, किसी के लिए कुछ और कीमत रखता है, तो उसके हिसाब से वो उसका रिएक्शन आता है. तो कोई वो दर्द से 2 महीने में निकल आता है, 2 दिन में बाहर निकल आता है, किसी को 2 साल भी लग जाता है. एंड 2 साल नॉर्मली मॉर्निंग करके एक मॉर्निंग कि भाई एक 3 महीने का एक स्पेस रहता है कि जो आदमी धीरे से बाहर निकलता है, लेकिन उसके बाद जब आगे चलती जाती है बात कि भाई 3 महीने हो जाने के बाद भी वो इंसान एक नॉर्मल लाइफ में नहीं आ पा रहा है, देन इट इज अ ग्रीफ. एंड दैट ग्रीफ अगर वो हैंडल नहीं कर पाता है इंसान, देन अल्टीमेटली ही सफर्स और शी सफर्स, एंड दैट कैन बी एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन द वीकेस्ट सिस्टम ही और शी इज हैविंग. तो इस तरीके से साइकोसोमेटिक इलनेस जो आती है वो. Okay, so I got an idea. It was really a very good explanation. So are there any principles, defining principles of homeopathy? Exactly. Yeah. जो हमने बात की उसी का जो एक्सटेंशन है कि भाई there are 2 main basic principles of homeopathy. One is similia similibus curanter and another is individualization. Okay. तो individualization की तो हमने ऑलरेडी बात की कि भाई एक सर्कमस्टेंसेस के अंदर फैमिली के ही सेम ब्लड रिलेशन के पीपल भी दे रिएक्ट डिफरेंटली. तो हर एक इंसान, इवन 2 ट्विन्स ऑफ मोनोजाइगोटिक यानी या तो 2 बहनें हैं या तो 2 भाई हैं, उसके भी रिएक्शंस अलग अलग होते हैं, एंड इट हैज बीन प्रूवन. तो हमको इंसान को उसकी टोटालिटी में समझना है कि भाई जैसे एक फिजिकल कंप्लेन लेके आया है वो तो अलग चीज है, उसके बारे में तो डिटेल में इंक्वायरी होती ही है. उसके अलावा उसके लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, उसकी टेंडेंसीज, जैसे कि कहते हैं किसी को पसीना बहुत होता है, किसी को कम होता है, इवन द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर दे पर्सपायर्स अ लॉट, किसी को सर पे ज्यादा होता है, किसी को पैरों के, हाथों के हथेली में, पैरों के तलियों में होता है. दैट गिव्स यू द फेयर आइडिया ऑफ हाउ द इंडिविजुअल. घर के 2 भाइयों के बीच में भी अलग अलग हो सकता है. सो दैट इज द इंडिविजुअलाइजेशन. तो हम पूरे केस टेकिंग के दौरान कोशिश करते हैं कि उसको पूरा समझे, फिजिकली एंड मेंटली. दूसरा जो प्रिंसिपल है सिमिलिबस क्युरेंटर, उसमें क्या होता है कि भाई होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, जैसे फार्माकोलॉजी होती है एलोपैथिक में, मेडिसिन की बारे में जो उसके बारे में लिखा जाता है, उसी तरह से मटेरिया मेडिका है होम्योपैथिक के अंदर. वहां पे जो भी सब्सटेंस है, जैसे कि मान लीजिए कि रेत विच इज कॉल्ड सिलिका, तो उसको पोटेंटाइज करके, पोटेंटाइज मींस कि उसको डाइल्यूट करके, उसको अल्कोहल में या तो पानी में डिसॉल्व करके, फिर उसका एक पोर्शन लेकर के अगेन द 90% ऑफ द वाटर, एंड दिस इज हाउ यू गो ऑन डाइल्यूटिंग.
और उसको फिर हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स में वो सब्सटेंस को डाइल्यूटेड फॉर्म में दे करके भी रजिस्टर्ड साइन एंड सिम्टम्स को वो क्या डेवलप करता है, ओके, एनी चेंजेस इन नॉर्मल फिजियोलॉजी, स्लीप पैटर्न, उसके लाइकिंग डिसलाइकिंग में कोई चेंजेस आने लगा है क्या दवाई लेने के बाद, 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, ओके, कोई कंप्लेन चालू होती है क्या कि भाई ब्लोटेड फीलिंग आया है, तो हेडेक आया है, या तो यूरिन में कोई शिकायत आई है, या तो फीमेल है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेंस्ट्रुएशन में कोई इश्यूज आए हैं, वो सब पूरा रजिस्टर्ड होता है, उसका एक पूरा रजिस्ट्रेशन होता है, हम्म, एंड दैट विल बी अ मेडिसिन। ओके, ये सब्सटेंस को डाइल्यूटेड फॉर्म में देने के बाद जो भी साइन सिम्टम्स आते हैं उसको रजिस्टर किया जाता है, वो मटेरिया मेडिका होती है। और जब पर्सन आता है हम उसकी डिटेल लेते हैं इंडिविजुअलाइजेशन के तौर पे, उसके बाद में वी ट्राई टू मैच जो जो पेशेंट आता है उसके साइन एंड सिम्टम्स विद द मेडिसिन ओके, विच हैज ऑलरेडी बीन रिटन, हम्म, और जो भी एकदम नजदीकी सिमिलम रहेगी, जो मैक्सिमम कवरेज करता है मैच पेशेंट करेगा, के या कंप्लेन ओके, का, that will be the medicine for that particular individual, and it will work on more than one ओके, मोर देन वन सिस्टम, system. लाइक, Yeah, say suppose a person comes with gastritis or the gastric या, problem and with hypertension, हम्म, और या तो जोड़ों का दर्द है, हम्म, तो एक ही सिंगल मेडिसिन will help. okay, 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 one particular medicine will affect on हाँ, different because different when we are organs, matching, we are seeing that all the complaints of the individual, whether it is being covered by that particular yeah, medicine or not, at the level of mind and the level of body. so वैसे भी बोलते हैं ना कि हमारा कोई एक ऑर्गन कभी बीमार होता ही नहीं है, कभी हेडेक भी हुआ तो आवर एंटायर बॉडी इज गेटिंग अफेक्टेड, Obviously. सो अल्टीमेटली जो मेडिसिन भी होनी चाहिए वो टेक्निकली कुछ वैसे ही होनी चाहिए, Right. right? Yeah, okay, okay, let's move further. I had another question for you, which was, there's this thing called case taking in homeopathy, right? What exactly is case taking and what exactly goes behind case taking? मतलब ये क्यों अलग है एलोपैथी वाला, जो हम दवा लेने जाते हैं जो भी नॉर्मल एलोपैथ्स के पास, तो बस गए पूछा उन्होंने ये हो रहा है, कुछ रिपोर्ट्स हो गया एंड डन, बट आई हैव नोन फ्रॉम माय फ्रेंड्स, फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस कि जब आप एक होम्योपैथ के पास जाते हो तो वो बहुत डिटेल में आपके एनालिसिस करते हो, व्हाट एग्जैक्टली गोस बिहाइंड द प्रोसेस। It is basically the extension of the same, the individualization और हम्म, सिमिलियर एक सही दवाई ढूंढनी है आपकी ओके, कंप्लेन के लिए, लेकिन उसके लिए होम्योपैथ एज आई हैव सेड दैट एवरी इंडिविजुअल इज अ डिफरेंट इंडिविजुअल। जैसे कि मान लीजिए कि 2 माइग्रेन के केसेस आए हैं, not necessary that both will receive the same medicine because both are different personality altogether. तो केस टेकिंग के अंदर फिजिकल कंप्लेंट्स तो उसकी तो डिटेल्स दी ही जाती है, लेकिन उसके बाद में उसकी तासीर को समझने की कोशिश की जाती है कि भाई ये इंसान कैसा है थ्रू हिज और हर लाइफ जर्नी, उसमें उसके लाइकिंग डिसलाइकिंग्स फिजिकल लेवल पे वो तो आ ही जाते हैं, उसके बाद में जो इमोशनल इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल रहता है वो भी समझना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली वी कंसिडर अ पर्सन एज अ होल एंड नॉट अ सिस्टम विच इज सिक। तो उसके लिए ये सब डिटेलिंग इन केस टेकिंग इज रिक्वायर्ड। मेनी टाइम्स पीपल फील ऑफेंडेड, उनको लगता है कि भाई ये जैसे हेयर फॉलिंग है तो उसके लिए क्या ये सब जरूरी है, बट टुडे इट इज हेयर फॉलिंग, टुमारो इट कैन बी एनीथिंग बिकॉज योर सिस्टम इज रिएक्टिंग। सी इन होम्योपैथिक देयर इज अनदर कांसेप्ट कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ डिजीज। डिजीज यानी जैसे अपना शरीर आपसे कुछ कहना चाहता है, the body is telling you something, communicating with you in the form of symptoms, in the form of complaint. Are we listening to it? That is up to us. तो ये आज हेयर फॉलिंग है, कल दूसरा कुछ हो सकता है, लेकिन उससे हमारे लिए हेयर फॉल या तो माइग्रेन डजंट डिफरेंशिएट द इंडिविजुअल, इट इज इंडिविजुअल विद डिफरेंशिएट दैट पर्सनालिटी। जैसे हेयर फॉलिंग के लिए भी वही केस टेकिंग जरूरी है, माइग्रेन के लिए भी वही केस उसको कुछ भी हो बट केस टेकिंग इज मस्ट, इट्स मस्ट, या नाइस नाइस। सो हूएवर द पेशेंट इज, व्हाटएवर द प्रॉब्लम इज, व्हाटएवर द डिजीज इज, कुछ थोड़ा सा स्किन इन्फेक्शन भी हुआ, सो द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, आइडियली स्पीकिंग यस, कोई लेता है नहीं लेता है डिपेंडिंग, कई बार पेशेंट भी कोऑपरेटिव नहीं रहते, दे फील ऑफेंडेड, या तो फिर इसके लिए क्या जरूरी है। अच्छा, तो समटाइम्स यू हैव टू यूज एक्यूट मेडिसिंस टू सेटल द पेशेंट कंप्लेंट, और उसके बाद में एक भरोसा डेवलप होता है तो फिर देन दे ओपन अप। लाइक इट मस्ट बी डिफिकल्ट फॉर एवरीबॉडी टू ओपन अप, लाइक आई थिंक या I used to not open up honestly, but then after establishing a trust,
Then I started, okay, नहीं, तो yeah, how Very, do you cope up that with is the that? concept, doctor-patient relationship. Yeah, See, many times it happens that all of a sudden हम कहते हैं कि भाई काउंसलिंग भी तभी किया जाना चाहिए जब पर्सन इज इन अ रिसीविंग मोड। yes, exactly. जरूरी नहीं है कि आपको आपको लगा है कि भाई उसको ये प्रॉब्लम है, लेकिन वेदर ही और शी इज रेडी फॉर दैट एडवाइजेस दैट यू आर प्रोवाइडिंग टू देम। Right. तो इसके लिए डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप अभी तो इट बिकम्स एन टॉपिक आल्सो, इट इज एमबीबीएस के अंदर तो उसको इंट्रोड्यूस भी किया गया है कि भाई डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इज इम्पोर्टेंट, Hmm. कि किस तरीके से आपको बात करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई पेशेंट को कैंसर हुआ है एंड इफ आई एम एन ऑन्कोलॉजिस्ट, तो मुझे पता होगा कि भाई कौन से स्टेज में है, क्या नहीं, व्हाट कुड बी द आउटकम ऑफ इट, बट देयर इज अ वे टू प्रेजेंट दोज इंफॉर्मेशन टू द रिलेटिव्स एंड टू द पर्सन इन Mhm. क्वेश्चन। Hmm. ऐसा कई बार होता है ना कि आपको कैंसर है और इतना टाइम है आपके पास, इट इज शॉकिंग, ऑलरेडी तो कैंसर इज इटसेल्फ इज अ It's शॉकिंग a थिंग, shock, yeah, और उसके बाद में आपका जो अप्रोच रहता है, एटीट्यूड रहता है, दैट फर्दर डिप्रेसेस द पर्सन। exactly. तो दैट इज हाउ इट इज कि भाई आप बोलो, समझाओ। कई बार क्या होता है कि कंप्लेन को जो आपको हो रही है, पेशेंट को हो रही है, उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने से भी कई बार पेशेंट को समझ में आ जाता है कि भाई ये बहुत बड़ी बात नहीं है, या तो उसमें क्या क्या जरूरी है। Hmm. इफ आई गिव यू एन एग्जांपल कि एलर्जिक राइनाइटिस है, सर्दी होती है, छींकें आती है, Hmm. पानी नहीं बहता है, और कंसेप्ट है आयुर्वेदिक का कि भाई सर्दी है तो आपको ये चीजें नहीं खानी चाहिए, बिकॉज जैसे कहते हैं कि राइस चावल है तो वो ठंडे है, उसकी तासीर ठंडी है, या तो कुकुम्बर है तो उसकी तासीर ठंडी है, दही छाछ नहीं लेना चाहिए सर्दी होती है तो। Hmm. इट बट होम्योपैथी गोज बियॉन्ड दैट कि भाई ठीक है, शरीर की हर एक फूड की खुद की एक तासीर है, खुद तासीर का है, एक right. टेम्परामेंट है, हाँ. उसी तरीके से इंसान का खुद का एक टेम्परामेंट है, तासीर है। अगर इफ इट इज मैचिंग इट वोंट गिव यू एनी प्रॉब्लम। Okay. तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको सर्दी हो गई है तो ठंडा बंद कर दो, आइसक्रीम बंद कर दो, चावल बंद कर दो, किसी को कफ रहता तो दूध बंद कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। यू हैव टू स्टडी योर बॉडी कि Okay. मुझे क्या जम रहा है, मुझे क्या नहीं जम रहा है। बॉडी विल टेल यू इमीडिएटली कि Right. ये मेरे बस की बात नहीं है, दिस इज नॉट फॉर मी। And again वो different है. एग्जैक्टली किसी को मैं बोलूंगी अगर कि मुझे नहीं चलता तो the person might question, लेकिन वो मेरी बॉडी है. एग्जैक्टली एंड Right? यू आर सपोज टू नो दिस, नॉट Exactly. बाय द सेइंग कि भाई Yeah. नहीं ये कफ की प्रकृति है तो ये नहीं चलता, या तो पित्त की प्रकृति है तो ये नहीं चलता, वो है, दैट इज अ साइंस। Yeah. लेकिन उसमें भी यू हैव टू इंडिविजुअलाइज योरसेल्फ कि भाई मुझे क्या उसमें नहीं चलने And वाला to है। know myself. We have to Exactly. know ourselves. और कई बार क्या होता है कि एलर्जी के पेशेंट आते हैं कि भाई ये भी नहीं खा रहा हूँ, 10 साल से ये नहीं खा रहा हूँ, ये छोड़ दिया है, वो छोड़ दिया है, फिर भी उसका तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो नहीं रहा है। दैट मीन्स दोज थिंग्स आर नॉट गिविंग प्रॉब्लम। हाँ. Right. तो जनरली एजुकेट पर्सन कि भाई जब भी मान लीजिए कि एक्यूट एपिसोड आता है कि ठीक है सुबह से चालू हो गई, तो भाई पिछले 24-48 घंटे में आपने क्या खाया, कहाँ पे गए थे, क्या वेदर था, क्या कपड़े पहने थे, बिकॉज एनीथिंग अंडर द सन कैन बी एन एलर्जन। Yeah. It is your body only will tell you which is allergen for you and which is normal for you. Fantastic, fantastic. Right. So, again, it was a really insightful answer. Actually, I understood what goes behind these cabins. You know, I'd like to know कि how do you define health? What is health? Based on your experience, you know, वो मुझे पता है जो normal होता है mental, physical, emotional. That is a very common idea of it. But if you, अगर मैं आपको आपके experience से पूछूं, because I've treated so many patients already, what is health and who is a healthy individual? As you said, definition के हिसाब से तो कोई healthy है नहीं, हाँ. because mental, emotional and physical well-being is impossible in today's world, Hmm. because everybody has their own set of problems. किसकी कितनी कैपेसिटी है टू डील विथ इट। जैसे कि कंसेप्ट है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म का। Hmm. जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई रोजमर्रा की जिंदगी के जो इश्यूज रहते हैं वो हमको इमीडिएटली असर नहीं करते हैं, नाइदर यू स्टार्टेड सफरिंग मेंटली और फिजिकली, बिकॉज देयर आर सर्टेन सिस्टम व्हिच इज इनबिल्ट इन द बॉडी। जैसे कि आपको एक फिजिकल लेवल पे, फिजियोलॉजी के लेवल पे बात करूं तो भाई एकदम से कुछ डर वाली बात आ गई, जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, तो अचानक से कोई सामने आ गया, यू हैव टू पुश योर ब्रेक टू द मैक्सिमम,
तो सडनली देयर इज अ रश ऑफ ब्लड टू द हेड, Yeah. पल्पिटेशन बढ़ेगा, दैट इज अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी, एड्रेनालिन का Natural one, yeah. रिलीज होता है, तो इंक्रीजेज योर, क्योंकि इट इज प्रिपेयरिंग योर बॉडी फॉर द फाइटिंग fight. और द फ्लाइट, Yeah, fight or flight. तो दैट इज एट द फिजिकल लेवल। वो एक नॉर्मल रेंज में आता है, वो एक जो इश्यू था, ये सिचुएशन थी, चली गई, यू सेटल डाउन, Okay. यू आर नॉर्मल। Hmm. तो सेम वे इमोशनली भी कई चीजें होती है, जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं, 10th में यू गॉट लेस मार्क और 12th में यू गेट लेस मार्क, तो जनरल रिएक्शन नॉर्मली क्या होता है, पेपर अच्छा नहीं था, या तो एग्जामिनर ने ठीक से चेक नहीं किया है, दिस आर द डिफेंसेस। नोबडी फिंगर देमसेल्फ फर्स्ट, Hmm. हम बाहर ढूंढते हैं उसका प्रॉब्लम, हमें पता रहता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, बट टू अवॉइड दैट पेन, टू अवॉइड दैट कॉन्शियंस गिल्ट आता है ना कई बार कि भाई मैंने मेहनत नहीं की और इससे वजह से कम मार्क्स आए, वो झटका तो लगता है। हु विल एक्सेप्ट देयर ओन फॉल्ट्स, अंदर से पता होने के बावजूद भी, बिकॉज अदरवाइज यू बिकम रेस्टलेस, यू बिकम एंशियस। Yeah. तो एक बार पहले बाहर डाल देते, जैसे प्रोजेक्शन कहते हैं कि भाई नहीं, ये उसमें मेरी गलती नहीं थी, वो तो सामने वाले का था, या तो पेपर खराब था, या तो ये था, या तो मेरे को बुखार आ गया था, या तो फैमिली में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए थे, इसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। हो सकता है उसकी इम्पैक्ट होती है, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी खुद तो जिम्मेदार है उस चीज के लिए। Yeah. लेकिन ये जो डिफरेंसेस है वो हमको प्रोटेक्ट कर लेती है ठीक है। कई बार, तो इनिशियल फेज में इट प्रोटेक्ट यू, लेकिन अगर इफ यू डोंट ओवरकम दिस, then you end up into some illness, either psychiatric or physical. So if somebody is that open कि वो खुद की गलती मानता है and you said the That is person also a becomes problem. restless, what happens next? That is also a problem because see, खुद की गलती मानना it's a biggest step towards the resolution of your problems. Exactly, yeah. लेकिन उसको भी हैंडल करने की एक जरूरत है, बिकॉज खुद की गलती एक हमें समझ में आ गई, हमें पता चल गई, उसके बाद में क्या होता है कि यू लूज योर कॉन्फिडेंस समटाइम्स, Exactly. या तो यू स्टार्टेड डाउटिंग, या तो यू गो इनटू अ गिल्ट ट्रिप, Hmm. और समाज में तो घर से लेकर के बाहर तक, माँ बाप से लेकर के सब, तेरा क्या होगा, वो तो पहले भी बचपन से लेके बड़े होते होते सुनते ही रहते हैं, हम भी बोलते हैं अपने बच्चों को कि तुम्हारा क्या होगा, इतना नहीं संभलता तुमसे, ये सब। तो ऑलरेडी यू आर हैविंग सर्टेन पास्ट सेंटेंसेस दैट वर देयर इन द बैक ऑफ माइंड, और फिर कुछ ऐसा होता है, देन रियली स्टार्टेड कि भाई हाँ, ये लोग मेरी बता रहे थे, गलती आई है। एम हैविंग सम इश्यूज, And- मेरे अंदर ही नहीं है, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता है, तो उसकी वजह से ओवरऑल पर्सनालिटी जो आगे चल के डेवलप होती है उसमें फिर इश्यूज आता है, अगर वो रिजोल्व नहीं होता है तो। Mhm. लेकिन वो ओवरकम कर रहता है, देन ही विल बी मोर कॉन्फिडेंट है। तो खुद की गलती मान लेना एक बात है, लेकिन फिर उसको रिजोल्व कैसे करोगे, Handle करना। आइदर यू ऑन योर ओन Yeah. or you will take a help of someone. Right. Okay. Doctor, I wanted to know what is a healthy relationship, or is there anything called an ideal relationship? To be very frank, there is nothing like ideal relationship. Every relationship has a differences. Depend के भाई आप संबंधों को कैसे समझते हैं। Relationship can be of many different type, parents, children, husband, wife, brothers, sisters and all these things. लेकिन उसका कोई फिक्स 100% फॉर्मूला नहीं है कि ये दिस इज हेल्दी एंड ये तो ये हेल्दी नहीं है। दो भाई बहन लड़के भी दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, Hmm. तो उसको व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट वुड बी देन। द थिंग इज दैट कि कोई भी रिलेशनशिप इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट नोमेनक्लेचर यू विल गिव इट टू यू, कि भाई ये माता पिता और बच्चों का रिलेशनशिप है, कोई भी रिलेशनशिप के लो, उसके अंदर अल्टीमेटली यू हैव टू सी कि व्हाट इज दैट यू आर एग्रीइंग अपॉन, और क्या है जो एग्रीएबल नहीं है, लेकिन यू हैव टू एग्री टू दैट आल्सो। Hmm. नोबडी इज 100%, ना तो माँ बाप 100% है बच्चों के लिए, ना तो बच्चे 100% है माँ बाप के लिए, ना तो पति 100% है पत्नी के लिए, एंड वाइस वर्सा। सो द थिंग इज दैट कि मैं किस चीजों को अपना पा रहा हूँ और किसको नहीं अपना पा रहा हूँ। नहीं अपना पाना इन द सेंस कि भाई आई एम नॉट एग्रीइंग टू,
या तो जिसमें मेरे डिफरेंसेस हैं और किस चीजों में मेरे आई एम हैविंग एन जिसे कहते हैं ना कि आई एम एग्रीइंग टू और आई अप्रिशिएट दोज थिंग्स क्वालिटीज और वट एवर यू कॉल इट। तो फोकस मेरा वो क्वालिटी पे रहेगा, फोकस मेरा वो जो दो चार चीजें जो अच्छी है जो आपको जो आप अप्रिशिएट करते हो उस पर रहेगा, देन द रिलेशनशिप विल बी वेरी स्मूथ। हम्म नहीं तो आज किसी को भी पूछ लो कि भाई लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि भाई 2 महीने पहले 72 ईयर ओल्ड अ पर्सन केम टू मी। बहुत पुराना पेशेंट है मेरा। हम्म ही हैज एन आईबीएस का भी कंप्लेन है, IBS, sorry. इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इट Okay. इज क्लासिकली ए साइकोसोमेटिक इलनेस। Okay. 15 साल से मेरा पेशेंट है, इनफ्रिक्वेंटली कम्स, जब भी कुछ कंप्लेन रहती है तो आते हैं। एंड सिंस 15 ईयर आई एम लिसनिंग देयर आर प्रॉब्लम्स इन हिज लाइफ Okay. कि भाई इसने ये नहीं किया है, ये वो नहीं किया है, ये उसका ये नहीं हो रहा है, वो नहीं, काइंड ऑफ एन कंप्लेनिंग टोन, काइंड ऑफ अ थिंग कि यू आर नॉट हैप्पी विथ योर लाइफ, Okay. दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। 25 दिन पहले आई हैव गिवन हिम, you call it homework or the task or whatever you call it, कि भाई just name 5 things that has happened in you which you appreciate in your life Hmm. of 72 years। आज 25 दिन हो गए, 3 बार आ गए फॉलोअप में, he could not able to write a single, because जब भी वो सोचने बैठता है तो all those which has not good according to him कि भाई मेरे साथ ये ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं, ये Negative. ऐसा है, वही याद आता है। दैट इज अ ह्यूमन Oh. टेंडेंसी। हम हमेशा दूसरों के अंदर नुक्स ही निकालते हैं, Hmm. या तो वो पहले ध्यान में आता है। अच्छी बात है किसी को ध्यान में कम आती है, आती है लेकिन वो ध्यान में रहती नहीं है। फिर जब भी झगड़ा होता है, इसी इफ हस्बैंड एंड वाइफ फाइट्स, तो वो जगह 2 मिनट में निपट जाए अगर यू स्टार्टेड इमीडिएटली फोकसिंग ऑन गुड पॉइंट्स Good ऑफ points. द गुड पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल। लेकिन वो नहीं होता है तभी, तब कभी वो सभी याद है, बातें याद आती है 10 साल पहले तूने ये कहा था, या तो ये किया था, या तो ये किया था, यू बिहेव लाइक दिस, That's very common. बिकॉज हाँ, दैट्स अ साइकोलॉजी। तो आइडियल रिलेशनशिप तो कोई है ही नहीं, ना ही तो कोई फॉर्मूला है। एक ही चीज है कि भाई मैं इतना समझ लेता हूं कि नोबडी इज 100%, लेकिन मुझे जो जो पसंद है, 4 चीजें जो मैं अप्रिशिएट कर पा रहा हूँ, वही आपको बाइंड करेगी, वही आपको आगे तक वो उस रिलेशनशिप को ले जाने में मदद करेगी। Hmm. अदरवाइज जैसे मैंने कहा ना कि डिफरेंसेस या तो डिसएग्रीएबल, तो आप 1000 चीजें दूसरे के बारे में लिख सकते हो, बता सकते हो। 4 चीजें अच्छी बतानी हो तो मुश्किल हो जाती है। जब वो आ जाए फोकस, ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप विल इंप्रूव, It will survive. सर्वाइव्स। Yeah. नहीं तो अल्टीमेटली यू सफर्स। Exactly. सो द रिलेशनशिप व्हेन वी कॉल आइडियलिज्म जैसा कुछ है नहीं। Hmm. इवन ट्रूथ इज डिफरेंट टू Different इंडिविजुअल। people. Yeah. मेरा सत्य अलग है, आपका सत्य अलग है। So there is nothing like an universal truth even, except few things। Except few things. Yeah. बाकी रिलेशनशिप में कोई फिक्स नीति नियम नहीं है कि भाई ये है तो ये अच्छी रिलेशनशिप है, या तो हस्बैंड वाइफ ऐसे बिहेव करता है। हस्बैंड वाइफ का बिहेवियर समाज में अलग रहता है, घर में अलग रहता है, सास ससुर के सामने अलग रहता है, रूम में अलग रहता है। कौन सी सच है रिलेशनशिप? Hmm. क्योंकि हम वी आर सोशल एनिमल्स, तो हम बाहर जाते तो झगड़ते नहीं रोड पे, वी मेंटेन द डेकोरम। हमें अपना भी खुद का ख्याल रहता है कि भाई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, या तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। डिफरेंसेस तो तभी भी थे जब बाहर गए थे, सास ससुर के सामने बैठे तभी भी आपके डिफरेंसेस तो है ही है, वही है, सेम डिफरेंसेस, सेम इंडिविजुअल्स, लेकिन फिर भी बिहेवियर रीजनेबली अच्छा रहता है। रूम में झगड़ा भी होता है व्हेन यू आर ऑल अलोन। तो कौन सी रिलेशनशिप सही है? तो ओनली थिंग है कि वेदर आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इंडिविजुअल विद ऑल द फ्लॉस। Hmm. लेकिन जो 4 जो अच्छी चीजें मुझे पसंद आ रही, वो है like उस okay. पे फोकस रहेगा तो बाकी का सब कुछ चलेगा, और बाकी का ऑटोमेटिकली फॉल इनटू प्लेसेस। लेट मी टेल यू दैट आल्सो। Hmm. एक बार वो 2 चीजें जो बहुत आपको बाइंड कर रही है एक दूसरे के साथ, उस पे फोकस चला जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली जो डिसएग्रीएबल
things will started getting agreeable. क्योंकि फिर अगर मैं सामने की इंसान में दो चीजें एक्सेप्ट करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, तो उसको भी लगेगा कि चलो इसको ये नहीं पसंद है, आई विल नॉट डू दिस। तो वो भी एडजस्ट करने की कोशिश करता है, उसको भी पता रहता है कि पसंद नहीं है, तो व्हाई शुड आई डू दिस व्हेन ही इज अप्रिशिएटिंग, ही इज एक्सेप्टिंग मी एज आई एम। तो आई ऑलवेज मेंशन, सी मेनी टाइम्स इनफर्टिलिटी के कैसे रिलेशनशिप का इनफर्टिलिटी से बहुत गहरा ताल्लुक है। ओके। बिकॉज जो डिफरेंसेस है ना इतने सारे बढ़ जाते हैं ना कि यू स्टार्टेड नॉट एक्सेप्टिंग ईच अदर। ओके। समाज के हिसाब से हस्बैंड वाइफ है, घर के हिसाब से हस्बैंड वाइफ है, लेकिन अंदर से यू आर नॉट एक्सेप्टिंग ईच अदर, तो यू आर नॉट एक्सेप्टिंग एनीथिंग ऑफ ईच अदर। सो दैट इज द प्राइमरी रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी मेनी टाइम्स। अपार्ट फ्रॉम व्हाट द अपार्ट फ्रॉम जो फिजियोलॉजिकल है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ केसेस के अंदर देयर इज नो ऑब्वियस फाइंडिंग्स कि भाई हार्मोन भी ठीक है, स्ट्रक्चर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। तो व्हाट इज द रीजन? तो ये इनडिफरेंसेस, मिसमैच, डिफरेंसेस बिटवीन द थॉट्स। यस। और मेरा पर्सनल खुद का मानना है कि शादी के बाद डोंट वेट फॉर प्रेगनेंसी और डोंट पोस्टपोन द प्रेगनेंसी फॉर लॉन्गर पीरियड। ओके। Specifically in arranged marriages, but it is equally true for love marriage as well. But in arranged marriage, because what happens, पहले see it's a honeymoon period kind of a thing. शादी के बाद आप everything is hunky dory, so good, वो 1-2 साल रहता है। Because लड़की जब घर में आती है तो she is marrying to the whole house, not only individual, तो उसको एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है। शुरू में सब अच्छा लगता है, सास कभी कुछ बोल भी देती है तो ठीक है, चल जाता है, वो यू डोंट माइंड मच, लेकिन फिर वो धीरे करके लगने लगता है। ऑल्सो यू स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर मच बेटर वे, बिकॉज नाउ यू आर स्पेंडिंग मैक्सिमम टाइम। एग्जैक्टली, मैक्सिमम टाइम। और एज ह्यूमन टेंडेंसी जो ऐसा भी है, ओ ये भी है, ये तो पहले कभी बताया नहीं था आपने। डिफरेंट साइड्स सामने आते हैं। So by the time you started knowing each other in a detail, you better have a child. So many times the differences will go in, हवा में चला जाता है फिर। It's quite a debatable topic, but ठीक है, I'll accept that's not wrong. So by this whatever we discussed, it also means that अगर हम अपने relationships में खुश नहीं हैं, so ultimately उसका हमारी health पे, जैसे infertility was one thing, but वैसे other physiological impacts भी हो सकते हैं। Anything. It can be anything in the body or in the mind level. See, ultimately relationship, आदमी, see, we are a social animal. Yeah. So you cannot live in isolation. वो भी बीमारी है फिर। आइसोलेशन में अगर आप ऐसा समझते हैं कि आप तक किसी के साथ जमती नहीं है, आई एम अ डिफरेंट पर्सन, you live for 6 months, 10 months, ultimately you end up with some psychiatric illness. Exactly. So you have to interact with the world, you have to interact with the society, you have to interact with your brothers and sisters and parents and spouses and everybody. तो differences तो पैदा ही होंगे, जाहिर सी बात है। Once you started interacting, there will be actions and reactions. अब उसमें आप कैसे हैंडल कर पाते हो, that defines your health or your disease. Simply put it that way. आप मैनेज कर पाते हो तो fine, you are healthy. The environment will be healthy. The other people will also remain healthy. The same way it is applicable to each and everybody. It's not the person in question. कि भाई पेशेंट जो आया है उसके लिए ही जरूरी नहीं, दूसरों के लिए भी जरूरी है। कई बार तो क्या हो जाता है कि फिजिशियन का कंसेप्ट बीच में आ जाता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। मान लीजिए कि एक हस्बैंड वाइफ है, अब उनके बीच में डिफरेंसेस है, लेकिन वो डिफरेंसेस दे आर फाइन विद इट। फिजिशियन चला जाता है, प्रॉब्लम करता है, ऐसे कैसे हो सकता है? Oh shit. See? Yeah. So it's a dynamics. Yeah. The dynamics, how you handle it. फिजिशियन का काम तो बहुत ही मतलब अपने सोच को अलग ही रखो। आज से 25 साल पहले मान लीजिए कि डिवोर्स इज अ वेरी टैबू। It was a taboo, yeah. कि भाई हाउ कम? अब उसके बहुत सारे रीजंस हैं। Why it is becoming so now common? एक तो पहले we become more self-centered compared to our parents or their parents. Exactly. दूसरी चीज ये है कि
Girls are getting more educated now, becoming more independent. They are earning person. तो उसको किसी की जरूरत नहीं है पर से। पहले क्या होता था 25 साल पहले, 20-50 साल पहले, कि भाई एक तो लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी। सी लेट्स टॉक अबाउट आवर पेरेंट्स। तो मदर आर नॉट सो एजुकेटेड, एग्जैक्टली या तो एजुकेटेड है तो भी उनके उसको बचपन से सिखाया गया है कि भाई परिवार है, फैमिली है, राइट बच्चे हैं, ये हाँ है। तो दे डोंट थिंक आउट ऑफ दैट बॉक्स। या अब मान लीजिए कि किस्मत खराब है आपकी और आपके हस्बैंड या तो पूरा फैमिली में इश्यूज आते रहते हैं, विच डिफिकल्ट फॉर यू टू कोप अप, so ultimately you suffer physically, but still you will maintain and carry on with that relationship. आज मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ होता है। दूसरी चीज, पहले में क्या होता था कि भाई मान लीजिए कि 50 साल पहले या तो 25 साल पहले की शादियों में अगर मान लीजिए कि वाइफ को कुछ इश्यूज है, अपने पेरेंट्स को बात करेगी तो वो भी ऐसे होगा कि भाई दिस इज इट, बैठो उधर ही हाँ दैट इज योर लाइफ, एग्जैक्टली वही अपना घर है, वहीं से ही आपकी अर्थी भी उठेगी, जो फिल्मी डायलॉग है, लेकिन दैट इज अ फैक्ट। दैट वाज फैक्ट आज क्या हो गया है, लड़की भी 50,000 कमाती है, लड़का भी 50,000 कमाता है। वाई शी विल टेक अ शीट ऑफ योर्स। तो या अभी क्या हो गया रिलेशनशिप में, विच आई हैव सीन, कि बच्चों को एजुकेट करना जरूरी है। मेल चाइल्ड, मेल चाइल्ड में क्या होता है कि जैसे मैं बड़ा हुआ हूं तो मैंने देखा है कि मम्मी ने घर का सब सामान काम संभाल रखा है, डैडी का काम है पैसे कमाना, बाहर का जो है। अब ऐसा नहीं रह गया। अब बच्चे को भी they have to share equal responsibility, because she is sharing the responsibility of earning money. You have to share the responsibility of household. एग्जैक्टली अब तुम ऐसा लगा कि भाई घर पे आ गया खाना तैयार होगा, फॉरगेट इट। या तो साथ में बनाओ या तो बाहर से लाओ, एग्जैक्टली बिकॉज शी इज ऑल्सो वर्किंग। सो दैट इज सो इक्वालिटी अगर ये थॉट प्रोसेस और जो एटीट्यूड है बच्चों का, अगर आप पेरेंट एज ए पेरेंट, इफ आई विल नॉट टीच माई किड, माई सन, कि भाई दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, हाउस होल्ड एक्टिविटीज, हाउस होल्ड कोरस, नहीं तो वो लड़की दूसरे दिन चली जाएगी, ना तो वो अपने पापा के घर जाएगी, ना ही तेरी जरूरत है, बिकॉज शी इज अर्निंग। तो आर वी रेडी फॉर ऑल दिस सोशल चेंजेस? रिलेशनशिप इज एवर इवॉल्विंग कंसेप्ट। तो ऐसा नहीं है कि ये ऐसा है तो रिलेशनशिप ऐसी है। एवरी रिलेशनशिप, वेदर पेरेंट्स किड्स, हस्बैंड वाइफ, एवरी रिलेशनशिप इज इवॉल्विंग with each 10 years 15 years of passage। कुछ ना कुछ डायनेमिक्स नए नए जुड़ते जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द चेंजेस, सोशियो पॉलिटिको इकोनॉमिकल चेंजेस की वजह से भी वो रिलेशनशिप बदलती है। right. So, whatever we discussed in this last part, it was you said कि हमें relationships को सही रखना है, so we need to adjust. इसमें compromises भी आते हैं. So, how can we conclude this any further? Like, you know, if I have to give just one tip to them, कि अच्छा this is the way आप अपने relationships को healthier बना सकते हो. सी एक्चुअली प्रॉब्लम ही वहां से चालू होता है कि यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। किसके लिए कर रहे हो भाई कॉम्प्रोमाइज आप? फॉर whom you are compromising? But the word compromise, that means कि you are let going so many things of yours, आपका ईगो वहीं से हर्ट होना चालू हो जाता है। क्योंकि फिर जब भी कुछ मान लीजिए कि डिफरेंसेस हुए और थोड़ी ज्यादा हो गए, जहां पे आर्ग्यूमेंट चालू हो गई, तो पहला आदमी बोलेगा मैंने तुम्हारे लिए ये किया, ये किया, ये किया। भाई किसने बोला था करने के लिए? बट यू वांट दिस रिलेशनशिप टू वर्क, तो आपको कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा। अब उसको आप कॉम्प्रोमाइज का नाम दोगे तो यू स्टार्टेड क्रिएटिंग प्रॉब्लम फ्रॉम दैट इटसेल्फ, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ सेक्रीफाइस किया है मेरी जिंदगी में। अरे किसके लिए किया भाई सेक्रीफाइस? अगर सेक्रीफाइस नहीं करना है, जिसे हम सो कॉल्ड सेक्रीफाइस बोलते हैं आप, तो शादी ही मत करो, किसी के साथ संबंध ही मत रखो, क्योंकि इट इज नॉट सिंपली बिकॉज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। दोस्तों में भी ऐसा होता है कई बार कि मैंने बुलाया था, मैं कब से आके खड़ा हो गया था, तू आया ही नहीं, या तो मैंने तुम्हें ऐसा बोला था कि ऐसा करना है लेकिन तू हैव नॉट फॉलोड माय एडवाइस। अब तूने एडवाइस दे दी, अब फॉलो करना नहीं करना, ग्रो अप। लेकिन देन वी बिकम पॉसेसिव, ओनरशिप का जो भाव आ जाता है ना रिलेशनशिप में भी, कि यस
वो कई You बार own a person. हाँ ऐसा नहीं है भाई, हाँ, nobody owns nobody, exactly. everybody has their own ownership. Are you respecting that? So you have to respect the boundaries तो ultimately. इमोशंस को तो रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा, सामने वाले की सेंसिटिविटी को, उसकी संवेदनाओं को तो आपको समझना ही पड़ेगा। Hmm. एक तरफी तो नहीं होती ना कुछ भी चीजें, Mm-hmm. और ये समझना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि एक सिंपल सा एग्जांपल दे दे के बात खत्म करेंगे कि भाई यू नो कि योर वाइफ लव्स फ्लावर्स से सपोज, Hmm. लेकिन आपको नहीं समझ में आ रही है बात, और आपने उसको चॉकलेट्स दे दी एज ए एक्सप्रेशन ऑफ योर लव, तब प्रॉब्लम दोनों तरफ होगी। उसको ऐसा लगता है कि भाई वो समझ ही नहीं पाएगी कि चॉकलेट इज ऑल्सो कैन बी एन एक्सप्रेशन Yeah, ऑफ right. लव। उसको तो जब तक फ्लावर नहीं मिलेंगे तब तक वो एक्सप्रेशन ऑफ लव हुआ ही नहीं। Exactly. अब उसको ऐसा लगता है कि भाई मैं तेरे लिए चॉकलेट लेके आया, तो समझने को तैयार नहीं है। सो वी हैव टू, वी कैन नॉट बी रिजिड इन अवर रिलेशनशिप, इन अवर अप्रोच टू एनी वेरियस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। So in this case, कभी हस्बैंड चॉकलेट लाएगा तो वाइफ को उसको भी अप्रिशिएट करना है, और कभी हस्बैंड को भी सोचना है कि भाई आज उसको क्या कार से पसंद लेके है, जाऊं, क्या चॉकलेट उसको क्या पसंद है। जैसे वाइफ को जैसे कहते हैं ना कि भाई So that's positively adjusting, हाँ, तो right? भाई जानो, एक दूसरे के बारे में जानो तो करो कि क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो वो करने की कोशिश करो। उसमें कौन सा सेक्रीफाइस कर रहे Exactly. हो, There's no उसमें कौन सा sacrifice. एडजस्टमेंट कर रहे हो आप। Hmm. अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो यू आर नॉट ए ह्यूमन बीइंग, Right. यू आर नॉट सेंसिटिव इनफ। और Sensitive. सेंसिटिविटी नहीं है जिसके पास, उसको क्या बोले, Humans. पत्थर के पास भी सेंसिटिविटी नहीं है। I'm getting your point. Nice, nice. सो वी नीड टू चेंज दिस वर्ड, एडजस्टमेंट, सेक्रीफाइस, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अच्छा. तुम्हें भी रहना है साथ में, इसलिए तू करता है यार, उसको भी रहना तो वो भी करती है। नहीं जमेगा तो अपने आप ही चले जाएगा। आज की दुनिया में तो अलग हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। And this equally works well with your mother-daughter relationship. Right. Absolutely. Everybody, brother, sister, friends. Absolutely. कई बार देखा होगा तूने भी, मैंने तो आई हैव तो सीन इन माय लाइफ, आई हैव ऑब्जर्व्ड इन, कि भाई बचपन में जो बातें पिताजी ने कही थी या मम्मी ने कही तो दिमाग चला जाता था कि यार चालू हो गई वापस। हाँ. When I become a parent, I realized so many things was right. So Exactly. it happens. वही बोल रहा हूँ कि इट्स कंटिन्यूस इवोल्यूशन है, लेकिन हम कहीं पे स्टक हो जाते हैं तो वो अपना प्रॉब्लम है, फिर वो सामने वाले का नहीं। तो रिलेशनशिप में भी ऐसा, इट्स कंटिन्यूसली इवॉल्विंग प्रोसेस। It was really wonderful talking to you, थैंक Ankit. यू। We really enjoyed. Like मैंने सोचा था hardly 15-20 मिनट होगा, but it लंबा खींच गया। Yeah, it went on and on. It was a really heartfelt and interesting conversation. थैंक यू। I really appreciate you for calling us here, for being a part of it. And anything that you want to share? No, thanks all, and wish you all the best for the Thank you. podcast. Thank you. Thank you.